हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। वेलकम टू स्टडी विद स्याल स्वाति। As you all know that we have completed tenses till continuous tense, means total 6 tenses we have completed and the remaining 6 we will study after some time. Okay, so today I am here with a new topic, kinds of sentences for you all. Today I am going to tell you about kinds of sentences. So first of all, what is a sentence? A sentence is a group of words that makes a complete sense. A sentence is a group of words that makes a complete sense. Means children, sentence क्या है? Sentence एक words का group होता है. Sentence is a group of words जो एक complete sense create करता है. ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं, आप देख सकते हो. I have given 2 examples over here. The cat drinks milk. So this is a sentence. The cat drinks milk. This is a sentence. Okay. So you just see that this sentence is a group of how many words? 1, 2, 3, 4. Yes, 1, 2, 3, 4 means this sentence is a group of 4 words. It is a group of 4 words. The cat drinks milk. So this is a group of words that makes a complete sense. मीन्स इस सेंटेंस को पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, ये सेंटेंस करेक्ट है, इसका कुछ सेंस निकल रहा है कि द कैट ड्रिंक्स मिल्क. सो दिस इज अ सेंटेंस. नाउ लुक एट अनदर एग्जाम्पल. गो स्कूल आई टू डेली. नाउ दिस इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. 1, 2, 3, 4, 5. How many words are there? 5 words are there. Okay, so you all can see that this is also a group of words, but this is not making any sense. Go school I to daily means ऐसा नहीं है कि sentence group of words होता है. A sentence is a group of words, but it should make a complete sense. उसका एक sense भी निकलना चाहिए. तो go school I to daily ये group of words तो है, but इसका कोई sense create नहीं हो रहा है, एक complete sense नहीं निकल रहा है. So this is not a sentence. आपको समझ में आया? तो sentence वही है जो एक कंप्लीट सेंस प्रोड्यूस करता है, एक कंप्लीट सेंस क्रिएट करता है. और आप जैसा कि देख सकते हो, इट इज एंडिंग विद द फुल स्टॉप, है ना. जब ये कोई सेंटेंस ही नहीं है तो नथिंग इज देयर इन द एंड. फाइन. नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर? 4. फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. A statement that tells us something. It ends with a full stop. आपको ध्यान रखना है कि declarative और assertive sentence means simple sentence. Simple, जो एक full stop से end होता है. Example, I pray to God daily. जो simple statements होते हैं, जो full stop से end होते हैं, उन statements को हम declarative और assertive sentences बोलते हैं. Okay, like I pray to God daily. My mother bakes tasty cake. Right, you all can see I have put full stop in the end, है ना. जो सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं, सिंपल स्टेटमेंट्स जो फुल स्टॉप से एंड होते हैं, दे आर कॉल्ड असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. लाइक आई प्रे टू गॉड डेली, माई मदर बेक्स टेस्टी केक. मेनी मोर एग्जाम्पल्स आर देयर. रिया dances beautifully. She sings a sweet song. The birds fly in the sky. Atul plays in the garden. I go to school daily. My name is Jasmine. Like this. तो जो simple statements होते हैं, जो simple sentences होते हैं, जो full stop से end होते हैं, they are called declarative or assertive sentence. Clear? Now, second kind of sentence is imperative sentence. Imperative sentence. Please remember, this type of sentence can be a command. Command means order, request or advice. It also ends with a full stop. Okay? आपको ध्यान रखना है कि imperative sentences क्या है. Imperative sentence में children 3 चीज़ें आती हैं. Order means command, request और advice. ठीक है. अगर आपको किसी सेंटेंस में when you read any sentence and you see that there is a request, it means that sentence is an imperative sentence. Okay? If you read any sentence and you see that there is an order, ठीक है, अगर आपको किसी सेंटेंस में लगता है कि कमांड दी गई है, ऑर्डर दिया गया है, तो वो भी इंपरेटिव सेंटेंस है. रिक्वेस्ट है किसी सेंटेंस में, तो वो भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस है. और अगर आपको लगता है कि किसी सेंटेंस में आपको एडवाइस दी जा रही है, देन टू ऑल्सो इट इज़ एन इंपरेटिव सेंटेंस. ओके, तो आपको प्लीज़ ये ध्यान रखना है, ये 3 चीज़ें तो आपको अपने माइंड से रिमूव करनी ही नहीं है. इंपरेटिव सेंटेंसेस मीन्स ऑर्डर,
means command, request or advice, and it also ends with a full stop. ओके, बट आपको ये चीज़ अपने माइंड में प्लीज़ रखनी है कि इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस. किसी सेंटेंस में आपको ऑर्डर लग रहा है तो भी वो आपका इम्परेटिव है. रिक्वेस्ट अगर आपको, इफ़ यू गेट एनी रिक्वेस्ट देन टू ऑल्सो इट्स एन इम्परेटिव सेंटेंस, एंड इफ़ यू गेट एन एडवाइस देन टू ऑल्सो इट्स एन इम्परेटिव सेंटेंस. ओके, नाउ सी 3 examples I have given here for you. First is, please get a glass of water for me. Please. The sentence is beginning with please, means it's a request. तो आपने देखा कि अगर सेंटेंस में आपका रिक्वेस्ट हो रहा है देन इट्स एन इम्परेटिव सेंटेंस. गेट आउट ऑफ द क्लासरूम, ऑर्डर है ना, गेट आउट ऑफ द क्लासरूम. सो हेयर इट्स एन ऑर्डर, इट्स एन इम्परेटिव सेंटेंस. डोंट टीज द एनिमल्स, एनिमल्स को मत सताओ, उन्हें परेशान मत करो. डोंट टीज द एनिमल्स. सो दिस इज एन एडवाइस, दिस इज एन एडवाइस. जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे कहते हैं ना कि टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, टेक योर मेडिसिन प्रॉपरली, है ना. तो डॉक्टर हमें क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं. वैसे ही डोंट टीज द एनिमल्स, एनिमल्स को टीज मत करो, उन्हें हर्ट मत करो, उन्हें ट्रबल मत करो. तो ये भी एक एडवाइस होती है ना. लाइक हेल्प द बैगर्स, हेल्प द पुअर्स, है ना. तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये एडवाइस है. ये सलाह दी जा रही है कि बैगर्स की हेल्प करो, पुअर्स की हेल्प करो, एनिमल को टीज मत करो, है ना. सो ये एडवाइस है. तो एडवाइस मीन्स इम्परेटिव सेंटेंस. ओके, ऑर्डर मीन्स इम्परेटिव सेंटेंस, और रिक्वेस्ट मीन्स ऑल्सो इम्परेटिव. सो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड माई स्टूडेंट्स, कि अगर आप किसी सेंटेंस को रीड करते हो और आप देखते हो कि उस सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो रहा है, ऑर्डर हो रहा है, एडवाइस हो रहा है, देन इट्स एन इम्परेटिव सेंटेंस. ठीक है. और प्लीज़ ध्यान रखिए कि इम्परेटिव सेंटेंसेस भी हमारे फुल स्टॉप से ही एंड होते हैं. अब ये क्या है आपका डेक्लेरेटिव और असर्टिव, ये भी तो फुल स्टॉप से एंड होता है ना. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. आपको पता है ना कि डेक्लेरेटिव और असर्टिव, इसमें तो हमें पता चल जाएगा कि रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है, तो वो इम्परेटिव होगा. लेकिन डेक्लेरेटिव सेंटेंस तो बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं, बिल्कुल सिंपल, है ना, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं डेक्लेरेटिव. तो आपको ये दोनों ही टाइप्स अपने माइंड में रखने हैं. एंड द अदर रिमेनिंग 2 टाइप्स वी विल स्टडी टुमारो. ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. ओके, टिल देन एवरीबडी टेक केयर, respect your elders, listen to your parents, go to school daily and do your studies very properly at your home. Fine? Bye everyone.